women's reservation bill that was lying in a limbo for more than a decade was finally cleared by the Rajya Sabha on the 9th of March, albeit some parties opposing it vociferously. So much so that a handful of MPs had to be dragged away by the marshals, who were later suspended. The legislation had led to frequent disruptions of the two houses of parliament, as both houses were adjourned amid uproar over the bill. It is expected to be introduced in the Lok Sabha in the coming days. How the bill is actually going to benefit women in the long run is what we are going to talk about today. Welcome to Gender Discourse. I'm Lottie Alaric. To carry the discussion forward, I have in the studio an eminent panel of guests. It is my privilege to welcome Madam Amarjeet Kaur, who is the National Secretary of the CPI. Sitting next to her is the Chief Whip of the Samajwadi Party, Mr. Shailendra Kumar. And sitting to my left is Member of Parliament from the BJP, Madam Poonam V. Jat. So I take this opportunity of welcoming three of you to this show today. Thank you. Well, to begin with, Amarjeet ji, I'd like to ask you, as we all know that we have been waiting for 14 years and more for this bill, and somehow there never has been a consensus of this, and we've also seen this, what is happening even today. So what do you, in your eyes, how do you really look at this? You see, I really think it is great times for India, that we were the first to come up for reservation at Panchayat and corporation level, but women were left at the place where only they implement the decisions taken in the assemblies or in the parliament. So now we have entered a new era. Women will be sitting in quite a large number in assemblies and in parliament, where you take policy decisions, where you make budgets, where you make allocations, where you steer the direction for the nation. So women first time will be sitting in political participation in the decision making, and it is going to have long lasting impact, because those seats reserved for women, every party will be forced to put up a woman candidate. Right. So you will be pushing through women in assemblies and parliament, and that means a great opportunity for women to be actively participating in political process, not only as members or those sitting in dharna, or only participating in processions for the political parties. For that they want the women to be there, but giving them positions in the decision making body was always a difficult process, and I think this took 15 years. What happened in Rajya Sabha and Lok Sabha could have happened even 15 years ago. Debate, because it's the original bill ultimately. Debate and putting forth your points, and then highest democratic body of this country, that is our Lok Sabha or Rajya Sabha, taking a decision. So I think it's a very important point in the history of India, and not only India. Whatever steps we take, it does impact not only our neighboring countries, internationally also, because we are very large democracy in the world. So I'm looking forward for positive impacts of it in the coming days. That's right. शमीर जी, मैं आपका मत जानना चाहूंगी इस बारे में कि ऐसा क्या है कि आपकी पार्टी ने और इस तरीके से इसको आप लोग नहीं इसके फेवर में है समहाउ। देखिए मैडम, हमारे पार्टी का जहां तक सवाल है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने भी कहा था कि महिलाओं को पूरा अधिकार दिया जाए। समाजवादी पार्टी, देखिए हमारे जो समाजवादी चिंतक पुराने नेताओं ने जो कहा है, उनके जो स्लोगन थे, उसका अमल करते हुए हम लोगों ने काम किया, और हमारी पार्टी कतई महिला बिल के विरोध में नहीं है। शुरू से हम लोग कहते आए कि महिला बिल के पक्ष में हम लोग, लेकिन जो है हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा पार्लियामेंट का, उसका स्वरूप कैसे होगा। आज हम यहाँ पे पब्लिक के द्वारा चुन के आते हैं, आने के बाद किस प्रकार से हम जो है जनता की समस्या, वो चाहे गरीब हो, मजलूम हो, किसान हो, नौजवान हो, मुसलमान, सबकी यहाँ पे जो है लड़ाई लड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका जो है जीवन स्तर ऊपर उठे। इसके लिए हमने पहले भी कहा था, आज भी हम लोग उसी पर स्टैंड ले रहे हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल 33 नहीं, आप 50 कर दो।
हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन उन महिलाओं को भी आरक्षण देने की जरूरत है जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात की हैं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक महिलाएं, उनको भी दीजिए। आपको याद ना होगा कि इस वक्त लोकसभा में दर्जनों ऐसे स्टेट हैं जहां से कोई भी मुसलमान चुन के नहीं आया, पुरुष। महिला की तो बात ही छोड़िए, और हम अगर रिजर्वेशन नहीं देंगे तो ये महिलाएं कैसे आएंगी। आज जो है अल्पसंख्यक की स्थिति जो अनुसूचित जात के लोग हैं उनसे भी बदतर पोजीशन है। यही कारण है कि रंगनाथ मिश्रा जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इनको आरक्षण देके इनके जीवन स्तर को उठाया जाए। अगर ये हो जाएगा हम उसका सपोर्ट करेंगे। Okay, I will get the reaction of what Poonam will have to say on this, but before that, let's take a look at what the three Yadavs have to say regarding this issue. इस बात में आम सहमति बनाने की जरूरत है और इस देश के अंदर जो राजनीतिक लोगों ने आजादी के बाद अपना जिंदगी खपा करके, मैं तो कहीं लड़ जाऊंगा, एक एक एमपी जो जिंदगी भर खपाया हुआ है वो हक है जनता का, वो नेता है वहां का, उनके कटने का सवाल खड़ा हुआ है। उनके कटने का मतलब है देश की लोकसभा का बहस को तमाम और बहस को करने का। धन्यवाद, इसलिए धन्यवाद शरद यादव जी। लालू प्रसाद जी, सहमति के लिए सरकार लोगों को बुला करके, पार्टियों को बुला करके सहमति बनाए, और जो इसमें 80% लोग हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो बेजवान लोग हैं, हजारों वर्ष से जो सताए हुए लोग हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो आपके पिछड़े जात के लोग हैं, दलित में वैसे ही दलित बोल नहीं पाता है। जी हाँ, ठीक है, धन्यवाद, वैसे ही इसकी जबान काटने का काम लालू वो वैसे ही गुलाम बनते रहे। इसलिए इसको ऐसे नहीं लाने दिया जाएगा। हम कहना चाहते हैं इसको ऐसे नहीं होने दिया जाएगा। आपसे विनती है, धन्यवाद, आप ठीक से लाइए, ठीक से बात करिए और इस पे और बहस करने का काम करिए। ये बहुत गलत काम हो रहा है। नहीं तो आप विपद लगाइए, यदि विपद नहीं लगाइए और 70% आदमी यदि मान लो इसके खिलाफ वोट न दे तो सदन से इस्तीफा देकर चला जाएगा। धन्यवाद लालू प्रसाद जी। आप दाएं पक्ष बीजेपी कांग्रेस के जितने एमपी हैं सब बोल रहे हैं कि हम लोग को बचा लो, हम लोग को डेथ सर्टिफिकेट पर, अब बात सुनिए भाई, डेथ सर्टिफिकेट पर दस्तखत करने के लिए कहा जा रहा है। ये यथार्थ है और ये सच्चाई है। हम लोग महिला का विरोधी नहीं है। आज आप करिए ना, लाल कार्डधारी महिलाओं को कर दीजिए 50%, क्रीमी लेयर लगा दीजिए। लेकिन क्या तस्वीर हम लोग की उतारी जा रही है बाढ़ में। 3 यादव, अरे तीनों पार्टी के हम लोग सुप्रीम हैं, लीडर हैं, हम लोग चुने गए हैं। क्या मिला महिलाओं को? इस सदन ने क्या दिया है? हम पूछा चाहते हैं नेता सदन को। सरकार ने क्या दिया? सरकार नहीं, नेता सदन माने सरकार है। सरकार ने क्या दिया? आप तो चेयरमैन जो बनी है, अध्यक्ष बनी है, वो तो पहले ही से बनी है, मेरे से पहले से रही है। जो आज हमारा साफ है कि समाज को सबको जोड़ के चलेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा, हमारे देश की शक्ति बढ़ेगी, सद्भावना बढ़ेगी। आज ऐसे आगे निकल गए, उन्हीं को और आगे निकाल रहे हैं, और पीछे रह गए तो पीछे धक्का मारा के पीछे हो जाइए। इसलिए हमने कहा है, ऐसे नहीं कहा है, इनका दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, इनकी महिलाओं को आरक्षण दीजिए। हम स्वीकार करते हैं और ये हम देश की एकता के लिए, देश को मजबूत करने के लिए बात कर रहे हैं। Well, those were strong sentiments coming from the party's supremos over there that you just watched. Well, let me bring in Poonam ji here now. How would you react to what Mr. Shailendra Kumar said before we played those bites, and what do you really make of this whole situation? In fact, I don't want to say that anybody is right or anybody is wrong. This is our democratic India, and everybody has the right to express his feelings, whether they are negative or they are positive. But I feel it is a great movement for every lady in India, because we have always been the suffered lot, and it has almost taken 14 years, 14 साल लग गए हमें इस सिचुएशन में आते आते। तो मुझे लगता है कि औरतों के लिए तो दिस इज अ प्राइड मूवमेंट, अ मूवमेंट टू सेलिब्रेट। एंड आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट शैलेंद्र सिंह जी, बिकॉज आई फील कि हर इंसान को जो वो फील करते हैं उसे एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है।
और मुझे इसमें कोई गलत बात नहीं लगती है। और अगर 14 साल बाद भी अगर हमारे लिए ये मूवमेंट आया है तो मुझे लगता है कि इसमें एक मील का पत्थर साबित होगा ये महिलाओं के लिए। आगे चलकर इसका बहुत फायदा महिलाओं को होने वाला है, और न सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन जहां हम बैठेंगे पार्लियामेंट, वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पॉलिटिक्स का। और अगर डिसीजन मेकिंग में हमारा 33% का हिस्सेदारी अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि और तबकों की भी महिलाओं को इससे बहुत फायदा होगा। That's right. So Amarjit ji, what do you think? Don't you think that had everybody given a consensus, maybe it would have never left a bitter taste in the mouth? देखिए, ऐसा है, कुछ बातें मिसलीडिंग भी की जा रही हैं। पहली बात तो ये कहना कि SC ST को रिजर्वेशन इसमें नहीं होगा, ये गलत है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो SC ST को प्रोवाइड करता है, OBCs को नहीं करता है, माइनॉरिटीज को नहीं करता है। तो लड़ाई ये की जानी चाहिए थी कि OBCs को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में उसी अकॉर्डिंगली चेंज करके उनके रिजर्वेशन की लड़ाई 15 साल पहले 1995 तक ये इशू नहीं उठाया गया। जब महिला आरक्षण बिल डिबेट में आया तब ये मुद्दा उठाया गया। उसके बाद से भी अब तक ऑलमोस्ट 15 साल, 14 साल से ऊपर हो गए, 15 साल बीत गए। तो जब बीच में नहीं था ये बिल का इशू, तब भी अपॉर्चुनिटी थी कि जनरल OBC की रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ी जाती और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा लेते। तो जैसे SC ST का था वैसे ही OBC का फॉल इन होता, वो नहीं किया। कब ये इशू उठाते हैं? जब महिला आरक्षण का बिल की डिबेट आई। तो हमारे को पीड़ा ये है कि कंसेंसस बनाने का प्रयास भी तो नहीं किया, जो आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने भी। और अगर OBC पे हमने जितनी बार वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, मुझे याद है गीता मुखर्जी जी के टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर ने उनका नाम भी लिया, गीता मुखर्जी जी के टाइम पे जब NCW की चेयरपर्सन मोहिनी गिरी थी, उस पर्टिकुलर पीरियड में वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने रात दिन एक की थी, और उन लोगों की लीडरशिप में पार्लियामेंट वाली और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज सबको इकट्ठा करके इस बात को लाया था, और सबने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा था ज्यादातर पार्टियों ने। और फिर 96 में पहली बार वो इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जिसकी गीता मुखर्जी चेयरपर्सन थी। अब उस टाइम पे हमने हर लीडर से जाके क्या कहा था, जैसे ये सुप्रीमोज हैं, सबसे मिले थे हम लोग, हमने ये कहा था आप OBC के लिए रिजर्वेशन की लड़ाई लड़िए, हम मना नहीं कर रहे, पर बिल को एज सच आप क्यों अपोज करते हैं? आप ये क्यों नहीं मानते हजारों वर्षों से महिलाएं वल्नरेबल सेक्शन वाली, जब आप कहते हैं दलित हैं, पीड़ित हैं, महिला सच एज सच पिछड़ी हुई है कि नहीं, तो इसलिए उसको महिला की कैटेगरी के रूप में इसको आने दीजिए। SC ST ऑटोमेटिकली मिलेगा, इसमें मिलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप OBC amendments have to come, they can come in later. They can come later. So what we were saying that is one thing. Second contention, again after listening to them I want to say, why should in Indian democracy anybody should think कि अगर मैंने यहाँ MP की सीट लड़ी, जीता या हारा, जीती या हारी, ये मेरी ही प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो सीट एज ए पार्टी लीडर हम लड़ते हैं, जीतते और हारते हैं, या कि इंडिविजुअल व्यक्ति सीट बना रहा है और डेथ वारंट पे साइन कर रहा है, मुझे नहीं ये शब्द अच्छे लग रहे। अगर पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रांग वर्क वहां पर है, वो पुरुष खड़ा होगा या स्त्री खड़ी होगी, लोग क्यों नहीं वोट देंगे? सिर्फ व्यक्ति को क्यों देंगे? पार्टी की पॉलिसी को क्यों नहीं देंगे? ये मेरा दूसरा कंटेंशन है इस बहस को सुनने के बाद। तीसरी बात मैं जो कहना चाहती हूँ वो सीधे ये कहना चाहती हूँ कि इसको बिल्कुल अभी भी उन सबको पॉजिटिवली लेना चाहिए। एक स्टेप हुआ है, आगे बढ़ा है, और लोकसभा के अंदर डट के अपनी डिबेट रखें। That's right. सबसे बड़ा फोरम है, लेट देम डिस्कस, एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी eloquent speakers. Yes. You see, yes. far and against there are eloquent speakers. They should put forth their viewpoints. They should tell their constituency what do they feel. और इसीलिए ये कह देना कि दलितों से धक्का हो जाएगा, मुस्लिम से धक्का हो जाएगा, OBC से धक्का, किस पार्टी को किसने रोका है मुस्लिम कैंडिडेट बनाने में, पुरुष या स्त्री? किसने रोका है OBC को टिकट देने में? किसने रोका है दलित को टिकट देने में? मतलब आप कहना चाहते हैं रिजर्वेशन नहीं होगी तो आप इन सेक्शंस को टिकट नहीं देने वाले क्या? सो दिस इज नॉट द आर्गुमेंट। यू पुट फोर्थ हाउ बेस्ट इट कैन बी मेड, और इसकी फर्दर अमेंडमेंट्स ये कैसे ला सकते हैं। लेकिन इसको स्टाल करना आज एहसास नहीं इनको हो रहा है, लेकिन इतिहास के अंदर ये जाएगा कि किन्होंने विरोध किया, क्योंकि इतना पॉजिटिव स्टेप हो रहा है। हम सबको बिल्कुल ग्रेसफुली इसमें लेना चाहिए, राइट से लेकर लेफ्ट तक। लेट दिस पास
asked gracefully, I think very well said. But I will definitely get your reactions to it. But before this, we have to slip into a very short break here in Gender Discourse. People do come back quickly, as when you come back, we'll also have a representative of the Congress. We'll have Mr. Madhu Gaur Yashiki with us. So don't go away, as we'll be back in a moment. Welcome back. You are watching Gender Discourse, and today our focus is on the Women Reservation Bill. Well, people, I did promise you that after the break we will be joined by a representative from the Congress. So I take this opportunity of welcoming Mr. Madhu Gaur Yashiki from the Congress. So welcome to the show, sir. Well, before we went into the break, Amarjit ji had a lot to say as to why these people are actually standing up against the bill. So Shailin ji, बहुत quickly मैं आपका reaction उस पे जाना कि आप क्यों उसके अपने अगेंस्ट, और ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सबको मिलके इस बिल को पास कराने में उसके साथ रहते? वो तो मैंने पहले भी बता दिया। देखिए, लॉ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ एंड जस्टिस कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की, उसका मैं मेंबर था। और ऑल ओवर इंडिया का हम लोग लगभग मेरे ख्याल से 8-10 स्टेट छूट गए थे। बाकी हर राजधानी में हम लोग गए, एनजीओस, हर पार्टी के लोगों को बुला के बात किया। तो ठीक है, एक पक्ष ये था कि साहब वर्तमान स्वरूप में, लेकिन मैक्सिमम जो लोगों की ओपिनियन थी, लोगों ने यही कहा कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी महिलाओं को जरूर इसमें रिजर्वेशन दिया जाए। वो बात हम लोगों ने रखी। ये मुद्दा सिर्फ तभी आता है जब भी विमेन रिजर्वेशन बिल की बात होती है, तो ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा इसलिए कि देखिए, मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं टोटल, 80 में 17 रिजर्व हैं, और 17 में उसी रिजर्वेशन में जिसमें हमको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बना था, उस वक्त हमें जो है रिजर्वेशन मिला, उसी रिजर्वेशन को तोड़ के आप उसमें कर रहे हैं, तो ये गलत है ना। हम चाहते हैं कि इन महिलाओं को और अलग से रिजर्वेशन दिया जाए, हमको क्यों डिस्टर्ब? इसीलिए तो हमारे लीडर्स कहते हैं कि लीडरशिप खत्म करने की इस बिल में जोरदार तरीके से साजिश है। हम चाहते हैं कि हम भी रहें और ये लोग भी आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं हमें। Well, let me see, Poonam ji is nodding her head as to her reaction. सभी नेताओं से वार्ता करके यूनानिमस इसको पास कर दीजिए, हमें एग्री है। ओके, यस पूनम जी। मुझे हमेशा क्या लगता है कि अगर टिकट्स तो है पार्टी देती है ना, जैसे कि मैं एक जनरल सीट पर लेडीज टिकट मिली मुझे, और ओवरऑल अगर हम अभी भी देखें ना तो 59 जो सीट्स लेडीज की हैं आज हमारे लोकसभा में, उसमें से भी 17 SC और ST लेडीज हैं। तो आप देखिए, मतलब कि हमारी जो संख्या है वो तो बराबर ही है, देखा जाए तो उनकी जो परसेंटेज है वो प्रॉपर है 59 लेडीज में। अगर 17 लेडीज SC और ST को बिलोंग करती हैं, जिसमें 12 लेडीज आई थिंक बिलोंग टू SC एंड 4 to 5 लेडीज बिलोंग टू ST एंड OBC भी है। हाँ, OBC तो इसके अलावा है। तो आप देखिए, तो मुझे लगता है कि जनरली जब टिकट्स दे रही होती है पार्टी, तो पार्टी अगर किसी व्यक्ति को देना चाहती है तो नोबडी कुड स्टॉप दैट। तो उसके लिए यहाँ महिला बिल में लड़ाई करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर पार्टी डिसाइड कर ले कि हमें किसी मुस्लिम व्यक्ति को देना है टिकट, तो इट्स फाइन। लाइक जैसे मेरी पार्टी ने, बीजेपी ने मुझे एक जनरल सीट के ऊपर लेडी को टिकट दिया, रिजर्वेशन तो था नहीं, फिर भी। Well, Poonam ji, at this point I'd like to ask you that there have been some feelers coming that not everybody was willing to participate from the BJP also. Not everybody was in a favor. So would you like to comment on that? Yeah, maybe it might be like that, because I'm not, generally I would like to speak like it's a male ego. Why it has taken almost 14 to 15 years? Because somewhere the male ego is hurt, and I can even understand कि आप इतने सालों से एक सीट पर काम कर रहे हो और अचानक एक दिन आपको ये पता चले कि आपकी जगह पर अब कोई महिला लड़ेंगी, तो बट नेचुरल थोड़ा इंडियन मेल ईगो हर्ट होता है। तो दैट वे some reactions might come, but then I feel it is democratic India, everybody has the right. Well, Mr. Gaur is smiling, I'll get his reaction, but after we see what Mr. Prakash Javadekar, the spokesperson of the BJP, had to say regarding this. हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है, अपनी अपनी राय कोई रखता है, लेकिन पार्टी का जब निर्णय होता है तो निर्णय होता है। इसके लिए ये जो अफवाह है कि पार्टी में दरार है, ये बिल्कुल अफवाह है।
और इसका हम खंडन करते हैं। Well, Mr. Madhu, I would like your reaction here. Do you really think that it is so much a classic case of the male ego really coming in between? No, I don't. I mean, it's a male-dominated society. Nobody can deny that, yes. and it's that obviously will be there. What Poonam says is partially true also. But we have to see the overall. What is the woman's status in the country? Is it this social change? Is it necessary or not? So I strongly believe it has to be. This has to come. It's been long due, and it is historical moment where the right party BJP and the Congress party coming together, which has never happened. Which has never happened. That's true. So then that itself shows that why we as a parliamentarians committed to bring this social change, getting more inclusive into the polity. And obviously the empowering woman is this is Rajiv Ji's dream, which started more than 2 decades ago. We have seen the sea change at the grassroots level, at village level, district level and municipality level, including the women giving this reservation. So unless if they come up to Assembly and Lok Sabha, then only the real change or real empowerment will take place. That's right. Now when you talk of real empowerment, do you think even once, of course it's a long drawn process when it will actually be passed and when it can be implemented, as we say in Hindi, कि दिल्ली तो अभी दूर है. So once that happens, do you think that really women are going to be empowered the way ladies and people like us are thinking that yes, this is going to be a changing face of the Indian society after that? See, it's a politics of majority or minority is a vote bank, obviously. Why we talk about minority reservations to OBC reservations, certain things which is needed, some we do take it as a political consideration. Right. So obviously the woman is 50% of this, consists 50% of our population. Unless you make them empower, it may be call it political, whatever it is, but this is required. To have it, India is more inclusive growth. If you want it, if you want to real make women is empowered, or if they get an equal gender budget allocation. So unless if they are there in the decision making, so nobody can address their issues other than themselves. That's right. That's right. So Amarjit ji, what is your reaction to that? Because I think very rightly he says we have to be in the decision making power, only then women's issues can really see prominence. Yes, definitely, and I would say I don't think Madhu will disagree with me that it was across all the party lines that the men were feeling that we will be losing our seats. It's not only problem in BJP. There were friends even within the Congress who used to tell us, and even other parties. So this difficulty is there because we are living in a society which continues still dominantly with the patriarchal value system. That difficulty is there. The attitudes, the mindset and all that difficulty is there. But some step has to be taken. So I am not arguing that with this all problems of women are going to get solved. No. It is only a question of political empowerment. Right. Giving them spaces in political life. That is going to be very, very important. Secondly, we know that empowerment is big question. Economic empowerment, he talked about budget. There is social empowerment, there is cultural empowerment, all inclusive in education, in health, everywhere they have two spaces. Then only empowerment process takes place. I would rather request everybody who are arguing against this bill, look at this question from this point of view also. आप इंडियन डेमोक्रेसी हैं, उस डेमोक्रेसी के अंदर आपकी आधी आबादी उस डेमोक्रेसी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट के बावजूद नहीं बैठ रही है डिसीजन मेकिंग में. तो ये क्या राइट नहीं है औरतों का? इसको इस ढंग से हम क्यों नहीं देखते? वुमेन एज ए क्लास टोटल. आई नो कि सारी वुमेन को एक तरह आप नहीं रख सकते. देर आर वुमेन, स्ट्रॉन्ग वुमेन, देर आर वुमेन हु आर स्टिल ड्रीमिंग टू हैव यू सी सम कॉपी पेंसिल एंड लर्निंग टू पुट देयर सिग्नेचर्स. वी नो दैट. लेकिन 50% पॉपुलेशन को स्पेस नहीं मिले डेमोक्रेसी में, तो उस डेमोक्रेसी को हम क्या करेंगे? इसलिए ये एक इतना बड़ा डिसीजन है जो इंडियन डेमोक्रेसी को बहुत और गहरा करेगा और उसमें ये रियलाइजेशन होगा कि वुमेन भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट होंगी और इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि माँ जो होती है घर की, वो नेक्स्ट जनरेशंस के लिए बहुत बड़ा संबल होती है, ताकत होती है. तो वुमेन कमिंग मोर एंड मोर इन पॉलिटिकल लाइफ, इट विल हैव कैस्केडिंग इफेक्ट एंड ट्रू इट इज गोइंग टू बी ए वेरी गुड सोशल डिसीजन फॉर सोशल चेंज. एब्सोल्युटली. यस. वेल, लेट मी सी व्हाट शैलेंद्र जी विल हैव टू से हियर. आपका क्या इसके ऊपर रिएक्शन रहेगा? देखिए, जहां तक विरोध की बात है,
अभी आपने तीनों नेताओं को सुना, व्हिप ना जारी करा दीजिए जिसे हर बजट को पास किया जाता है, आइज और नो, तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या है बिल। हम लोग तो कह रहे हैं ना कि इसको पास कीजिए, लेकिन रहा सवाल कि जैसा मधु जी ने कहा, ये बात सही है कि मैडम ने भी कहा कि इससे जो है लोकतंत्र मजबूत होगा। इसके लिए हम लोगों ने केवल महिलाओं के लिए यही बिल नहीं, पता नहीं कितने बिल आए हैं, हम लोगों ने हर्ष ध्वनि से सभी बिलों को हम लोगों ने पास कराया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं की जो जीवन स्तर है या उनको और आगे बढ़ाने की बात है, आगे बढ़ें, तरक्की करें। और यही नहीं, हमारे यहाँ देखिए प्रेसिडेंट से लेके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके और नीचे तक तमाम महिलाएं बैठी हैं और सम्मान है उनका, आदर है, और बढ़ चढ़ के यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी जाके हम लोग ने अपनी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हम चाहते हैं कि महिलाएं चाहे किसी भी कास्ट की हो, अपर कास्ट, मीडियम क्लास, चाहे वो SC/ST की हो, OBC की हो, माइनॉरिटी की, जो भी आपके तमाम हमारे और भी महिलाएं हैं वो भी आगे बढ़ें और आगे बढ़ के देश के विकास में अपना योगदान दें। इसमें हम लोग जो है पूरी तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है, एक बात आ रही विरोध की, ऐसी बात नहीं कि कौन रोक रहा है महिलाओं को लाने के लिए। MS गिल साहब इस समय ट्रांसपोर्ट आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। जब ये इलेक्शन कमिश्नर थे, इनके सामने तमाम ये बिल तो 14 साल से चल रहा है ना, इस पर डिस्कशन, उन्होंने ये माना था कि दल के ऊपर छोड़ दिया जाए, हर दल के लोग महिलाओं को लड़ा दें रिजर्वेशन के हिसाब से वैसे भी, और जो दल 33% महिलाओं को ना लड़ाए तो उनकी जो है मान्यता समाप्त कर दीजिए, दल के ऊपर छोड़ दीजिए। हमें मालूम है कि हाँ, पूनम जी कहाँ से जीत के आएंगी, मधु जी मैडम कहाँ से जीत के आएंगे, हमको वहां से लड़ाना है। अब अगर आपने एक जगह से आपने बंदिश, अब उसमें ये भी है, अभी आप लोगों ने डीपली उसको देखा नहीं है, उसमें ये भी है कि अगर हर 5 साल में लॉटरी पड़ेगी तो ऐसा है मैडम कि अगर हम 5 साल के लिए पूनम जी बन गई और इनको मालूम हो गया कि अगले साल ये चाहता है, तो वहां का विकास बाधित होगा। ये बहुत बड़ा मतलब वेरी गुड पॉइंट शरण जी, एंड आई वुड लाइक पूनम ji, your reaction on that, because do you think this rotation is actually going to work in anybody's favor? No, I don't think so. Only the whole bill I feel is very good. Only this point even I don't agree with it. In fact, this is the only thing which I don't agree all over the bill. मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर मान लीजिए कि मैं ही 5 साल वो वुमेन रिजर्व सीट पर लड़ी, तो उसके बाद मुझे पता है कि एग्जैक्टली अब ये सीट मेरे पास रहने वाली नहीं है, उस पर कोई जेंट्स लड़ेगा, तो मेरी अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दोनों सीट के प्रति कम हो जाएगी और इससे पब्लिक को ओवरऑल नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि 5 ईयर का जो रोटेशन है उसमें कुछ अमेंडमेंट करके लाया जाए। 15 साल कर दे, 10 साल भी कर दे तो भी बहुत है, क्योंकि न्यू लेडीज विल कम, लाइक वी हैव कम फ्रॉम द ग्रास रूट। 15 साल हमने अपनी लाइफ में बहुत काम किया है लोअर लेवल से पार्टी में, और आज वी हैव कम टू द MP लेवल। लेकिन अगर अचानक रिजर्वेशन आ जाए तो वील हैव टू गेट लेडीज फ्रॉम एवरी स्ट्रेट ऑफ लाइफ, तो वो अब इतनी दे आर नॉट दैट लाइक इतनी प्रॉपर तो नहीं होंगी, उन्हें इतना पार्लियामेंट के रूल्स रेगुलेशन सीखने में भी टाइम लगेगा। तो 5 साल जब तक वो सीखे तब तक तो उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, फिर उनके लिए कोई नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। और मुझे लगता है पूरे पार्लियामेंट में अराउंड कुछ 10% ही लोग ऐसे होंगे जो किसी और जगह से जाकर जीत जाएं अपने क्षेत्र के बिना। इवन इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, इवन बिकॉज आई एम अ कच्छी बिलोंगिंग नेटिव ऑफ कच्छ, सो आई कैन विन फ्रॉम कच्छ, बट आई कैन नॉट गो टू पोरबंदर एंड सम अदर प्लेस एंड विन। तो इसलिए ये तकलीफ तो है, इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें बहुत खामियां हैं। तो उसके लिए इसका विरोध करने की बजाय इसमें सुधार लाया जाए। That is exactly, Mr. Madhu, that's what I want your reaction here, because do you think that this is somehow going to defeat the whole purpose of having the bill in the first place, as they say that this rotation business somehow, this is not going anybody's throat properly? No, that's not the final decision. We discussed this with the Honorable Law Minister, himself he belonged to OBC. We do off the record when we're discussing as a belong to OBC group, and I do share with their view about reservation. But what he said is, we are all agreeing to have this reservation first. Right. It is Congress party who bought the reservations, provide the reservation to the SC/STs to OBCs. So he said we are not against the reservation, neither Congress party nor UPA parties. So what Poonamji says also, what we are saying, we all agreeing, even Shailaji says that we are not against Arakshan. That's right.
The khilaf is that there no reservation within the reservation. What we are saying, let this bill passed, let's have a reservation for women. So these things, while passing the bill also, we could discuss about those rotation system which majority of us opposing it. That's right. So that can be discussed and that can be brought an amendment. So that was not final, whether rotation or an alphabetical Yes, first get into the bus and then you can look for a seat. You know? तो पहले बस में चढ़े तो सही पहले. Yes, and then you can get a place. modalities की बात है. Yes, Amarji ji, I will be coming back to you, but right now we'll have to slip into another break here in Gender Discourse. People do come back quickly as we still have a lot to talk about today's Women Reservation Bill. We'll be back in just a moment.